Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a career reading wherein we will have three piles and we will receive messages relating to your career or any career message that you need to hear right now. So let's start. Where's mic? Yeah. So let's start with the reading. So let's see the three piles that wants to come through today. Okay, that is the first card. Okay, the second card. Okay, take this card. Okay. I will add a photo of pile selection which will be three cards from the tarot deck itself. So take your time and intuitively select which pile or group calls to you the most, and I shall see you at your reading. Hello pile 1, welcome to your reading. So let's see what career messages that you need to hear right now. We'll take 7 cards. Give us 5 more cards, Spirit. 6 more cards. 6 more cards, Spirit. Okay. 5 more cards, Spirit. Pile 1, career messages, Spirit. Okay, this one is falling out.
Okay, this one. Okay, more. Okay. So, firstly, the significator card that you chose is the Ace of Pentacles. Then we have the Empress, the Ace of Swords, the World, the King of Wands upright. I think it is reversed. Yeah, I think it is reversed. Sorry. The King of Wands reversed, the Emperor, the Judgment reversed, and the Six of Swords upright. Firstly, with the Ace of Pentacles, I feel that you are very close to really manifest a financial opportunity for you, pile number 1. And I think this opportunity is something that you are very capable of. I feel you have really, you have really sown the seeds to really manifest this opportunity. You have done the work required to manifest this financial opportunity, and it's like you have also really healed something within yourself to actually be in a position to receive this. Like, I feel you have broken some generational patterns here. Yes, I feel you have broken some generational patterns here. And you are really, I am being drawn to the pentacle in this Ace of Pentacle card. Although it is entirely a pentacle, but the exact shape of the pentacle. So, yeah, that is what I feel. Again, manifesting a financial opportunity for yourself. Pile number 1. And also for you, I'm getting that you are a person who is grounded, who is really aware of their reality, who is aware of the practical reality, who is aware that what is going on around me, what is going on with the people I know, with the situation I am in, what can be the best possible solution for me to get to something. I'm hearing go-getter. So pile number 1, I think you are very much, you are like you have a predominant masculine energy. You are predominantly masculine in energy. I mean, in the sense of what your soul is, I would say. Yeah. Also, it's like you don't really care about, the barriers or the, I would say, obstacles that really come into your way. You surge no matter what. You surge, or, rather you just go for it without even, I am getting a resilient energy here. Someone who is very resilient, despite of the challenges that they face, despite of, maybe despite of certain uncertainties, some uncertainties,
unknown sort of energy also, but you still, yeah, you search forward. You search forward, pile number 1. Yeah. That's what I'm getting with the Ace of Pentacles. With the Empress, there is a message coming that you really need to, you really need to rest a bit. I think you are really, I think you are in a position of really burnout, like, being burnt out a bit. But I also feel someone's energy who really, who is a workaholic, who is really, like, it does not matter how many hours you are there. You are really concerned about, okay, I have to finish certain some task, and and I will do it no matter what. That is the energy that I'm getting here. But your spirit guides, want to give you this message that it is also important to rest. Yeah, and I am getting this thing to tell you, like I go to college, and there, today my lecturer was, saying something about how the amount of rest increases the productivity in people, being able to work even more, so that is what I'm feeling here. So I am really getting to tell you this message that pile number 1, rest for some time. Rest, because when you rest, you do even more better. You shine more than any, like working people I'm hearing. So it's like, yeah, you need to rest a bit, pile number 1. Yeah. Then we have the Ace of Swords. The Ace of Swords talks about, your intellect, pile number 1, is something that is phenomenal. The way you understand things, the way you perceive things. And also I am getting to tell you this, that you are really someone who is very open-minded. You are not really, I am hearing, trailblazer. Yeah, someone who really, knows what really requires to, what is required to really do something that stands out in the eyes of people, in the eyes of clients. You know that. And that is why a lot of people trust on your intellect. A lot of people feel that, कि okay, ये person है तो हम फिर, we are saved. We are, like, मतलब, we are in a better position when this person is, really, in our team, or rather we are in this person's presence or something. That is what I'm hearing. And it's like you have a really good focus also, pile number 1. You don't really get distracted. Like, मुझे ऐसी एक एनर्जी आ रही है जैसे ना कोई एकदम ही पीछे पड़ जाता है ना कोई चीज के, मतलब, like there is no going back in that. आपने सोच ली कि आपको एक चीज करनी है, आप बस उसी की तरफ ही देख रहे हैं, और कुछ, चाहे कितना ही कोई आपको, इधर से उधर करने की कोशिश करे, आप नहीं होंगे. मुझे सुनाई दे रहा है. And yeah, it's like also
यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा एक योगदान या एक हाथ है आपको आपकी मतलब इट्स लाइक यूनिवर्स ने या गॉड ने आपको ऐसा बनाया है. पॉइंट नंबर 1, someone who really stands out, who really is a trailblazer, who is really, yeah, you are someone who is divinely guided. Pile number 1, whether you really see it practically or not, whether your mind really rationalizes this thing or not, but you are divinely guided. Pile number 1. And yeah, you and also मुझे ऐसा लगता है कि आप एज अ पर्सन भी आपको भी पसंद होगा टू डू डिफरेंट थिंग्स, टू रियली बीइंग वर्सेटाइल इन अ वे. मुझे एक ऐसी पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसका अगर सीवी है तो सीवी में सिर्फ ओके, आई एम गेटिंग दिस, ऐसा है ऐसा नहीं कि अगर आपने सोचा है कि मार्केटिंग का जॉब है तो ऐसा नहीं कि आपके पास सिर्फ मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होगा, आपके पास एचआर का भी एक्सपीरियंस होगा. उसके बाद आपने शायद फाइनेंस में भी थोड़ा बहुत चीज़ें सीखी है. उसके बाद इन योर हॉबीज, इन योर सॉफ्ट स्किल्स, यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर नॉट यूजुअली पीपल सोचते हैं. मतलब एक ऐसी पर्सपेक्टिव बन जाती कि अगर कोई मार्केटिंग में है तो ये पर्सन तो शायद ये चीज़ें करता होगा या व्हाटएवर. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप वो जो एक बॉक्सेस बनाए होते हैं उसको आप तोड़ देते हैं इन अ वे. पॉइंट नंबर 1. Yes, that is what I'm getting. Then we have the world card. Yeah, someone who does not fit in the box, someone who is a different shape, who is neither a circle nor a square, maybe a pentagon, a hexagon, or someone who's very unique, someone who's very different. And it's like it's like आप में ना आप एक मिक्सचर है, आप एक मिक्सचर है a lot of different personalities को अगर मिला के एक पर्सन बनाए तो वो पाइल नंबर 1 होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड इट्स लाइक एक परफेक्ट बैलेंस है आपके अंदर, एक परफेक्ट बैलेंस है इंटेलेक्ट का और मोटिवेशन का, पैशन का. if I can explain is I'm sorry, if I can explain this, it's like the perfect balance of swords and wands. Swords are thoughts, swords are intellect, swords are the thoughts that you have, and wands are the card of the, I would say, yeah, ambition, passion. That is something that the wands suit shows. So yeah, you are the perfect blend, perfect balanced blend. That is what I feel. And also, okay, it's like yeah, you have two different sorts of personalities within you. Pile number 1. अगेन आप जेमिनाई भी हो सकते हैं. मैं ऐसे मुझे आया दिमाग में तो मैंने बोला या सो इट्स लाइक, हाँ, मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि आपका इनर चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है. मतलब इट्स लाइक कि जो आपका इनर चाइल्ड है वो आपको गाइड करता है इन योर करियर इन सम वे. जो ऐसा होता है कि मतलब वो एक ऐसी आवाज़ आपके अंदर से आती है जो वो काफ़ी क्लियर और वो काफ़ी सॉर्टेड होती है. और वो जब आवाज़ आपको आती है कोई चीज़ करने के लिए तो आप रुकते नहीं हैं. पॉइंट नंबर 1, आप उस चीज़ को करते ही करते हैं. तो इसलिए आपका इनर चाइल्ड बहुत एक्टिव है.
मतलब ऐसे मुझे नजर आ रहा है जैसे को बोलो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आपका इनर चाइल्ड लाइक छोटा सा है पर बहुत बड़ा धमाका करने वाला एक पर्सन है। देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। मतलब इट्स लाइक कि जब मैंने कहा कि प्रोमिनेंट मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है, सॉरी प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंट और डोमिनेंट, एंड यहाँ पे एम्परर ही है। एम्परर का कार्ड इज द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। और ये भी कि आपका ओके आप मांगलिक हो सकते हैं अगर ऐसा है तो मुझे, क्योंकि हम मैस्कुलिन एनर्जी की बात करें तो मुझे यहाँ पे मंगल ग्रह की एनर्जी आई रही है एंड इस कार्ड में भी मंगल है। सो आप मांगलिक हो सकते हैं आप, या आप मांगलिक हो सकते हैं, मुझे एनर्जी आ रही है। यस ओके लेकिन मुझे ऐसी आई एम नॉट रियली नॉलेजेबल इन दैट, बट मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे किसी के 11th 4th 5th हाउस में मंगल हो सकता है, ऐसे मुझे आ रही है चीज़ें। सो या ओके देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक और मुझे मैसेज आ रहा है कि आप माता रानी से बहुत कनेक्ट हो सकते हैं। यू नो दुर्गा माँ से आपका बहुत एक कनेक्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो जिसमें आप यू नो लाइक आपने कनेक्ट किया हो माता से, या आपकी फैमिली में माता रानी का एक कुछ तो सिग्निफिकेंस है, या आपके फैमिली वाले बहुत बिलीव करते हैं माता रानी में। देखिए मुझे नरसिम्हा जी की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो वो भी हो सकता है लाइक यू नो विष्णु जी को भी बहुत मानते हो। विष्णु जी की कोई भी अवतार की यू नो पूजा होती है ज़्यादा, अब चाहे वो कृष्ण जी ही हो सकते हैं, तो वो मुझे आ रहा है। हाँ मतलब जैसे मुझे कोई अच्छा, हाँ ये भी मुझे एक एनर्जी आ रही कि आप ना कोई भी चीज़ को टालते नहीं होंगे। फाइल नंबर 1, आपको टालना पड़ता होगा तो आपको लगता होगा अरे यार ये क्या कर दिया मैंने। आपको टालना पसंद नहीं काम को, और इसलिए कि आपको ना काम को करके मतलब जो भी आ रहा है अच्छे से करके उसको खत्म करना है। यू डोंट लाइक पेंडिंग टास्क्स। फाइल नंबर 1, यू डोंट अप्रिशिएट पेंडिंग टास्क्स। या बिकॉज यू रियली लाइक टू, हाँ मतलब जैसे मुझे कि ऐसी पर्सन की एनर्जी आ रही है वर्क हार्ड प्ले हार्ड, तो मुझे अब वैसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ओके देन वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड्स। और बाकी लोग आपको देख के काफी चौंकते होंगे और लाइक सोचते होंगे यार ये इंसान थकता नहीं है क्या। मतलब लाइक आप अपनी मस्ती में लगे हो, आप अपनी चीजें यू नो लाइक यू आर रियली बिजी सॉर्टिंग आउट द थिंग्स दैट यू हैव, एंड लाइक अदर मतलब बाकी लोग देख के ना आपको सोचते हैं यार इनका तो काम ही खत्म नहीं होता, या ये मतलब क्या पूरे दिन काम 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 करते रहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। पर ये कि आपको मजा आता है पॉइंट नंबर 1 काम करने में। इट्स लाइक योर सेकंड होम। पॉइंट नंबर 1, really enjoy working. You really enjoy taking those challenges, those trying out different methods of of whatever work you do, experimenting a bit, talking to new people in your work environment, building work relationships, and really identifying some opportunities, some possible opportunities जो like आगे जाके और भी शायद बड़ी बन सकती हैं।
आप फ्यूचर को एक तरह से देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि क्या फ्यूचर हो सकता है इस पर्टिकुलर जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ, या कोई भी चीज़ का वर्क रिलेटेड आप में वो कैपेबिलिटी है। ये इसलिए बिकॉज आप एनर्जी भी रीड कर पाते हैं। अब ये एनर्जी ऐसे नहीं जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बट एक बहुत ही नेचुरली आपको एनर्जी रीड करना आता है, और आपको ये पता भी नहीं कि आपको आता है, बट आप ये करते हो और आपको समझ आ जाता है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। बहुत एक मुझे सॉर्टेड एनर्जी फील हो रही है आपसे पॉइंट नंबर 1। यस, any other messages? So that's what I am getting for you. Pile number 1, again it is a general reading, so take what resonates, leave the rest. And if you like how I read cards, please like, share and subscribe to my YouTube channel, and I shall see you in my next reading. Thank you. Oh, hello, pile number 2. Welcome or welcome back to your reading or to this channel. So, let's see what messages do we have for you in your career. Let's go. Okay, we'll take 7 cards. Pile number 2, career messages. Pile number 2, career messages. Pile number 2, career messages. Pile number 2, career messages, please. Pile number 2, career messages. Okay, we take 1 card from this. Okay. 3, 4, 5, 7, 6, sorry. Yeah, and 1 more. Yeah, we're done. So let's see your significator card. It is the Ace of Wands. Then we have the Chariot reversed. Yeah, I really feel it is upright, so upright leaning. The 6 of Cups, the 5 of Cups, the King of Swords, the 3 of Pentacles, the 8 of Pentacles, and the Star. So firstly with the Ace of Wands, it's strange that कि जो first जो पाइल नंबर 1 का सिग्निफिकेटर कार्ड था वो एस ऑफ पेंटिकल्स और आपका एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग वाली एनर्जी मुझे आपकी पाइल में नज़र आ रही है। कुछ तो एक न्यू बिगिनिंग हुई है और ये एक बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पर हुई है। मतलब इट्स लाइक कि आप अब मेंटली उस पोजीशन पे है कि आप अपने करियर पर ध्यान दे पाए। शायद पास्ट में ऐसा नहीं था, आपके फैमिली में काफ़ी चीज़ें हो रही थी पास्ट में, और उसकी वजह से
आपकी इमोशनल हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी थी, जो होने के बाद अब आप एक अब आप इस पोजीशन में कि आप अब हाँ मतलब आप हील कर चुके हैं उस चीज़ से 80 to 90%। और अब आप उस पोजीशन में कि आप अपने करियर पर ध्यान दे सकें। तो ये मुझे आपकी डोमिनेंट एनर्जी लग रही है अभी, डोमिनेंट प्रेजेंट एनर्जी। ओके, विथ द चैरियट, हाँ मतलब ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है जैसे ना डैम के गेट्स जब खोल देते तब वाटर कैसे रश करता है, तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आपके लिए अब वो फोकस जब शिफ्ट हुआ है करियर पे, तो आप बस लाइक कह रहे कि अब तो मैं नहीं रुकूंगी, अब तो बस भागना ही है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्शन लेस भाग रहे हैं, आपको पता है पॉइंट नंबर 2 आपको कहाँ जाना है, और आप उस डायरेक्शन में मुझे ऐसे सुनाई दिया तो आप बिल्कुल या यूसेन बोल्ट की तरह आप भाग रहे हैं एकदम, बिल्कुल मुझे वैसे नजर आ रहे हैं। और आप चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नई मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि ओके अगर मैंने कोई ये एक चीज़ यूज़ करी तो मतलब लाइक क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ को अच्छे से करने का। तो अब ये देख रहे हैं, एनालाइज भी काफ़ी करते हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं आप, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। थोड़ा सा मतलब मुझे यू स्ट्रेस लग रहा है आपके लिए। यू स्ट्रेस मतलब एक टर्म होता है, साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं कि 2 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। एक यू स्ट्रेस होता है जो अच्छा स्ट्रेस होता है, ऐसा टाइप का स्ट्रेस जो आपको मोटिवेट करता है टू टेक एक्शन, और एक डिस्ट्रेस होता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रेस जो आपको एक्शन ही नहीं लेने देता, जो आपको ओवर थिंकिंग में डाल देता है। तो मुझे आप यू स्ट्रेस में थोड़े से नज़र आ रहे हैं, बट हाँ लाइक काफ़ी आपकी पेस अच्छी चल रही है, आपके करियर में काफ़ी दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स का आपको सपोर्ट है, पॉइंट नंबर 2। जो भी आप कर रहे हैं अभी वो बहुत खुश हैं कि आप अब फाइनली वो चीज़ कर रहे हैं जो मतलब जिसकी ना ये आपको हमेशा से अपने करियर में एक एक ऐसी एनर्जी चाहिए थी, जो मतलब जिसमें ना आपको बस करियर में लगे रहना है। आपको पसंद नहीं आता ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, वेले बैठे रहना, क्योंकि आप ये है ही नहीं। और जब से आपको लाइक ये ग्रीन सिग्नल सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स ने दिया है एनर्जेटिकली, मतलब आई वुड से इन एवरी सेंस आपको ग्रीन सिग्नल मिला है, तो तब से लाइक आपने ना मतलब बिल्कुल ही ऐसे एक गांठ बांध ली अपने दिमाग में कि अब तो मुझे बस चलते जाना है। और ये सब देख के बिल्कुल आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत खुश हैं, दे वेरी हैप्पी and they're very like looking forward to your actions every day। आप उठकर क्या करना है आज, कैसे करना है, आप कैसे प्लान करते हैं, आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारी चीज़ों पे उनकी निगरानी, उनकी नज़र है। मतलब समवन हु मुझे ऐसी फीलिंग है जैसे आपके स्पिरिट गाइड ऐसे बैठे हुए वो देख रहे हैं, अब ये क्या करेगा, अब ये कैसे करेगा या करेगी, ये फीलिंग आ रही है मुझे। और मुझे एक और मैसेज आ रहा है, थोड़ा अलग से आया, बट मुझे ऐसा लगता है आपको फॉर्मल लाइक पहनना या फॉर्मल रहना काफ़ी पसंद है। मतलब फॉर्मल रहने से मेरा मतलब है कि लाइक you don't really appreciate when in work environments people are not professional, you don't appreciate that। मतलब okay, you are someone who appreciates kindness, who appreciates people helping each other, being polite to each other, but you don't really appreciate unprofessionalism। आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा फोकस होके थोड़ा अपना काम पे ध्यान दो,
ऐसे क्या मतलब, ऐसे आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने वाले या डिस्ट्रैक्ट होने वाले लोग मतलब थोड़े समझ में नहीं आते आपको, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, काफ़ी क्लियर सॉर्टेड से आप इंसान लग रहे हैं ऐसे मेरे को, मतलब इट्स लाइक कि मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है जैसे कोई कटाक्ष मारता है ना कोई, मतलब लाइक कटाक्ष से मेरा मतलब है कि सरकाज़म थ्रो करता है कोई पर्सन, मुझे अब वैसे भी लग रही है। इट्स लाइक जैसे कोई ताने मारता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हाँ, मतलब आप हर किसी को ये नहीं करते, बट इट्स लाइक कि कुछ लोग जो आपके ऐसे लाइक फ्रेंड्स हैं आपकी वर्क एनवायरनमेंट में समथिंग, उनको आप ऐसे लाइक ताने मार के थोड़ा सा टीज करते हैं कभी, मुझे ऐसा लगता है जब हाँ। और लाइक ये तो है ही, और उसके अलावा आप ना बाकी लोगों को भी मोटिवेट करते कि नहीं यार, अपने को ही करना है, हमें एज टीम हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ऐसा कुछ। आप एक लीडर लाइक एनर्जी में पॉइंट नंबर 2, आपकी लीडर वाली एनर्जी है, और आप वो लाइक आपको पता है कि आपको कैसे लोगों को सेम पेज पे लेके आना है, आपको पता है वो, और ये आपसे बहुत आसानी से होता है। इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, इसके लिए आपको लाइक वो हाँ, मतलब ऐसा कुछ फेक सिनेरियो क्रिएट नहीं करना पड़ता। आपके वर्ड्स ही काफ़ी है पॉइंट नंबर 2, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को लाइक या पुश करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि लोग कुछ होते लोग ना सो जाते हैं, थोड़े से लेजी हो जाते हैं, इसलिए आप आते हैं उन लोगों के पास और आप कहते हैं नहीं यार, चलो लेट्स वर्क, वी हैव टू डू दिस एंड या लाइक दोज पीपल स्टार्ट वर्किंग अगेन। सो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। हाँ, मतलब आपकी एक ऐसी भी मुझे एनर्जी लग। So hello, point number 3, welcome to your reading. So firstly, I had recorded your reading, and when I saw it, I wasn't able to find it. I don't know why. So here I am. I feel like there is some urgency to tell this message, so that's why I will be speaking a little faster. So firstly, with the Queen of Pentacles, what I'm seeing is that you are really someone who is in your feminine energy. You are someone who has, I think, some sorts of gifts, some sorts of spiritual gifts, and you are really aligned with the universe in some way. You are spiritually aligned, and as a result of that, you are really someone who is who is someone really ahead of the material world, ahead of ahead of what most people really sees success as. So I feel that is you, and you